टू पार्ट्स थे और हमने yesterday we were doing one problem set 3.3 था. The problem was third problem, two parts, third problem, page number 76. So A part is done. The span of S is equal to S if and only if क्या था condition? S is a क्या होना चाहिए? subspace. Subspace. S is a subspace of. If your set S is itself a subspace, अगर ये subspace है, तो it will equal to the span of S. Span S is always a subspace. Both sides will become subspace. B part was remaining. कल की रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा मैंने भी करी. Span S of span S is equal to span S. This part was remaining. So here, this is also easy part for B. B part I will do. So let us suppose span S को हमने कोई again T मान लिया. Let span S is equal to some T. Notation दे दिया because it is again some subspace मान लिया it is T. Then what will happen? Now if I will take span S of span S, so this will equal to span of T. Span of T के इक्वल होगा. यहाँ पर भी देखो आपको टू सेट्स इक्वल शो करने हैं. Keep in mind. So I told you when you want to show A is equal to B, you have to show A is a subset of A. ये हमारा प्रोसीजर होता है. So here I want to show these two sets are equal and ये these two are equal. ये शो करना है इक्वल आपस में. Span of span S is equal to span of. Now we know that T is always contained in span of T. हर सेट अपने स्पैन सेट पे कंटेन होता है. This thing we know. So this implies that और T कितना है? Span S. So this implies that span S contained in और span T is how much? Span of S, span of S. है ना? It is your one. It's clear. One side हमने प्रूव करा भी. A subset of B. Because T is any set is always contained in its span set. T is contained in the span set. T is what? T is denoted by this. The span S is contained in the span of span S. Now I will show B subset of any this side subset of span S. For that I will take let इसको अब शो करना है. तो अब यहाँ इसके लिए प्रोसीजर क्या करेंगे? Let X belongs to this span of T. This should subset of this. तो let X belongs to span of T. तो ये भी कल आपको बताया था कि अगर A subset of B शो करना है तो you have to show X belongs to A implies that X belongs to B. तो हमें शो करना this is subset of this. तो ये किसके इक्वल है? X belongs to मान लिया हमने, ये ले लिया, इसमें बिलोंग करना है, ये आपस में इक्वल है. इसका मतलब इसमें. तो दिस implies that X is a अगर स्पैन सेट में तो X क्या हुआ? X will be a linear combination of elements of T, है ना? अगर X स्पैन T में है तो इसका मतलब क्या हुआ? X will be some linear combination of the elements of T. और T कितना है? T span S है. देखो T is equal to span S. That means I can say
X is a linear combination of elements of S, है ना। S के कह सकता हूँ मैं, T किसके इक्वल, स्पैन S के। स्पैन S में जो एलिमेंट्स होंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे S के, तो आई कैन से X is लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो अगर X लीनियर कॉम्बिनेशन है स्पैन S का, इसका मतलब क्या हुआ, X belongs to span of S. So X belongs to span T implies X belongs to span S. This implies that span T is a subset of span of S. Or span of T is how much? This. Span of S is subset of span of S. So 1 and 2. Span S of span S equal to span S. In fact, you can prove that again span of span, if you can take 3 times, 4 times, and so many times, it will always move over. बताइए, did you get it? How to prove? और मैं अभी Yes, sir. next problem we have fourth problem. Let V1, V2, Vn be n elements of a vector space. Then prove that A part span of V1, V2, Vn is equal to span of alpha 1 V1, alpha 2 V2, and so on, alpha n Vn, where alpha I is not 0. Okay, means A part is what? If you have a spanning set V1, V2, Vn, तो इस पर अगर हम किसी अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, अब भी वो स्पैनिंग सेट जो होगा इक्वल रहेंगे आपस में, ठीक है। बी पार्ट इज व्हाट? V1, V2, if I am taking 2, V1, V2, it will be equal to V1 minus V2, V1 plus V2, इसके इक्वल होगा। ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या कि अगर 2 एलिमेंट्स का स्पैन सेट है तो उनकी डिफरेंस या सम कर दें तो जो स्पैन होगा वो सेम होगा, यानी कि उन्हीं का लिनियर कॉम्बिनेशन। And C part, the important part, if Bk belongs to a span of V1, V2 and so on, Bk minus 1, ठीक है। Bk कोई एलिमेंट है जो स्पैनिंग सेट इसको बिलोंग कर रहा है, स्पैनिंग सेट ऑफ प्रीवियस एलिमेंट्स, कोई Bk हमने ले लिया, वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स, ये तो उसका मतलब Bk belongs to this, तो एक ऐसा एलिमेंट जो लीनियर कॉम्बिनेशन है of other elements, then V1, V2 and so on, Bk minus 1, Bk,
vk plus 1 and so on vn. The spanning set of this all elements, this will equal to v1 v2 vk minus 1 vk plus 1 and so on. Means what? कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है विच इज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स, तो उस एलिमेंट्स को अगर हम स्पैनिंग सेट में रखें या ना रखें, देखो यहाँ पर वी के मिसिंग है, हेयर वी के मिसिंग, तो वी के अगर हम इस स्पैनिंग सेट से निकाल दें, स्टिल इट विल बी इक्वल टू द स्पैनिंग सेट कंटेनिंग वी के ना। ये वही जो मैंने कल बताया था कि लाइक यू हैव सम इनफाइनाइट थिंग, इनफाइनाइट सेट, उसमें से कोई एक एलिमेंट निकाल दें या ऐड कर दें, उससे सेट के उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो स्पैन सेट आपका इनफाइनाइट सेट है, कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसमें से अगर मैं एक एलिमेंट रिमूव, एक क्या कई एलिमेंट ऐसे आप रिमूव करते चले जाएं जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो बाकी अदर एलिमेंट्स का, तब भी आपका स्पैनिंग सेट है वो इक्वल ही होगा। ठीक है, पी के यहाँ पर नहीं है, स्टिल इट इज इक्वल। तो दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर देयर फॉर दिस स्पैनिंग सेट। ये प्रॉपर्टीज है इनफैक्ट। बताइए प्रॉब्लम क्लियर रही? Yes. तो इसे प्रूव करते हैं। अबू रेहान, अबू रेहान है क्लास में? यस सर। प्रॉब्लम समझ में आई आपको जो लिखी है मैंने ये? यस सर। चलिए, अब देखो इसमें अगर आप देखें सारे ही पार्ट्स में आपको एक्चुअली टू सेट्स इक्वल शो करने हैं। एक सेट लेफ्ट में है ए और एक है राइट में। इन ऑल थ्री पार्ट्स यू हैव टू शो ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, है ना। टू सेट्स को हमें इक्वल शो करना है। तो क्या करेंगे, हम वही प्रोसीजर लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। ए इज इक्वल टू बी के लिए ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ बी, यही प्रोसीजर हमें लगाना है। ओके, प्रूफ आसान है, कोई मुश्किल नहीं है आपको अगर ऐसा लग रहा हो। इट इज क्वाइट इजी, सिर्फ हमें डेफिनेशन यूज करनी है स्पैनिंग सेट की, और ये तरीका लगाना। तो पहले लेके चलते हैं, लेट अस सपोज, पहले ये पार्ट कर रहा हूँ। सो दिस आई वांट टू प्रूव इक्वल। तो सबसेट के लिए मैंने ऐसे आपको बताया, आई विल कंसीडर लेट सम एलिमेंट u या x ले लें, लेट x बिलोंग्स टू v1 v2 vn, स्पैन ऑफ दिस, है ना। ये लेके चलते हैं। तो अगर x, और ये शो करेंगे कि वो इस वाले में बिलोंग करता है। अब अगर x बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? x को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? अब देखो अल्फा 1 अल्फा 2 तो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो अल्फा 1 की जगह मैं क्या ले लेता हूँ, कुछ बीटा 1 ले लेता हूँ, Beta. है ना, क्योंकि अल्फास हमने वहाँ यूज करा हुआ है ऑलरेडी, प्रॉब्लम में गिवन है, तो हम कुछ और स्केलर्स ले सकते हैं। वी हैव इनफाइनाइट चॉइस फॉर स्केलर्स। तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n ले लिया। ठीक, चलो अब एक बार बताओ, यहाँ मुझे शो करना है x बिलोंग्स टू दिस। इसमें शो करने के लिए मुझे अल्फा 1 लाना है, यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा 3। यहाँ अल्फा कैसे लाऊं मैं? इसमें अल्फा 1 क्या लाऊं बताओ? क्या करूं अगर मैं अल्फा 1 v1 लिखूंगा इसको, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? Beta 1 upon alpha. ये करना पड़ेगा, है ना। कर सकता हूँ ये, तो इज इन माई हैंड, क्योंकि आई वांट टू ब्रिंग अल्फास इन द स्पेलिंग सेट। तो अल्फास कैसे आएंगे? इस तरीके। सिमिलरली बीटा 2 अपॉन अल्फा 2 एंड सो ऑन बीटा n अपॉन अल्फा n। ठीक है, अब बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 क्या होगा? इट इज अगेन सम रियल नंबर, बोथ आर रियल्स। सपोज गामा कह देता हूँ, गामा 1 अल्फा 1 v1 प्लस गामा 2 अल्फा 2 v2, है ना, एंड सो ऑन गामा n अल्फा n vn। ये हमने मान लिया। फिर यहाँ लिख देंगे गामा आई का मतलब है
बीटा आई अपॉन अल्फा आई। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए गाँव ये क्या है, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन वी वन, है ना, क्योंकि ये स्केलर है और ये एक वेक्टर है, अगेन ये एक वेक्टर ही तो बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? Yes, sir. कैन आई से दैट x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ, कैन आई से दिस? बताइए, क्योंकि गामा तो स्केलर है, ये फिर एक वेक्टर है, Yes. कह सकते हैं, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, दैट योर लेफ्ट हैंड साइड Vn, it is subset of alpha 1 V1 and so on alpha n Vn। ये आपकी हो गई क्वेश्चन 1। सिमिलरली ऐसे कर सकते हैं, सिमिलरली x बिलोंग्स टू दिस, इसी को रिवर्स करेंगे तो x क्या हो जाएगा? गामा वन अल्फा वन V1, है ना, और गामा वन अल्फा वन को मर्ज कर दूंगा मैं तो क्या बन जाएगा वो? समेट बीटा वन। इसी अगर रिवर्स करें हम, बताइए, सिमिलरली लेट सम x बिलोंग्स टू, अब हमने क्या लिया राइट हैंड साइड, अल्फा वन V1 alpha 2 V2 and so on alpha n Vn। So this implies that x can be written as, क्या लिख सकता हूं मैं? गामा वन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स। अब क्या करूं बताओ, क्या करें इसे? अब हमें V1 V2 लाना है तो क्या करें, अल्फा वन को कहाँ करते हैं, इसके साथ ले ले। Gamma 1 alpha 1 को beta 1. हाँ, इसे इधर ले सकता हूँ, स्केलर्स को हमने प्रोडक्ट में लिख दिया, एट सो ऑन गामा एन अल्फा एन। अब ये फिर कुछ न्यू स्केलर बन गया, बीटा बन गया या डेल्टा, है ना। बीटा ना लिखे तो कुछ वो लिखते, यहाँ स्केलर्स डिफरेंट यूज कर सकते थे आप, कोई जरूरी नहीं है ये, क्योंकि कंफ्यूजन हो कभी कि इसका मतलब ये है, ऐसा कोई वो नहीं। यहाँ बीटा वन आपके पास ये अलग थे, इससे मैं कुछ डेल्टा लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेल्टा वन V1 प्लस डेल्टा टू V2 एंड सो ऑन डेल्टा n Vn, where delta I is equal to gamma I alpha I and they all are scalars, you know. So it means what? X can be written as linear combination of this. So X belongs to span of V1, V2, Vn. This is 2. So from 1 and 2, you got left hand side is equal to right hand side, है ना? ये लेफ्ट ही, ये राइट ही। क्लियर है? चलो बी की बात करते हैं। बी में क्या देखिए, सिर्फ टू वेक्टर्स को शो करना है। बी में भी वही करेंगे, बी वेक्टर बी प्रॉब्लम में बी इज v1 v2 is equal to v1 minus v2 v1 plus v। So let some x belongs to span of v1 v2। तो x को मैं लिख सकता हूँ सम, क्योंकि टू वेक्टर है तो अल्फा बीटा लिख सकते हैं, अल्फा v1 प्लस बीटा v2। अब देखो यहाँ थोड़ा सा हमें देखना माइनस का टर्म्स कैसे आएगा, थोड़ी सी अर्थमेटिक अगर आपको ध्यान है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, बताओ ये क्या चीज है? अल्फा बाई टू बीटा बाई टू, यही है अल्फा, यही है। Alpha. यस, और बीटा को व्हाट आई कैन राइट, माइनस, Minus only. ये लिख सकता हूँ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी अर्थमेटिक करिए। अल्फा को आई कैन राइट दिस, बीटा को आई कैन राइट दिस,
या आपने मैट्रिक्स से भी किया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम करते थे। एवरी मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। वहां पर आप ये लिखते हैं अगर याद हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, ऐसे कुछ करते हो ना मैट्रिक्स में भी, तो यहाँ हमने से ये लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पे जरा सा देखें, अगर हम, क्योंकि हमें v1 माइनस v2 चाहिए, तो यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा बाई टू फर्स्ट और सेकंड एंड फोर्थ टर्म में। तो जब आपने अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा v1, यहाँ बचा रिमेनिंग v2, माइनस है ना। और यहाँ सिमिलर आई एम टेकिंग कॉमन हियर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो यू गॉट v1 प्लस v2, है ना। अब ये क्या है, इट इज अगेन सम स्केलर, तो ये क्या है अल्फा माइनस बीटा बाई टू, इट इज सम स्केलर, सपोज गामा 1 प्लस गामा 2 v1 प्लस v2। इसका मतलब क्या हुआ कि x कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 माइनस v2 एंड v1 प्लस v2। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ v1 v1 माइनस v2। माइनस ठीक है, ये करना, तो ये हमें करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम को देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो आप यू विल गेट द आइडिया। कन्वर्स की बात अभी क्या है, अभी तो सबसेट आया है ये, so this implies that v1 v2 is a subset of, जैसे 1 कर देते, कन्वर्स लेके चलते अगेन, लेट सम x बिलोंग, अब क्या लेके चले इसमें, है ना, x बिलोंग्स टू, स्पैन ऑफ v1 माइनस v2। ये अब आप बताओ क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या आसान है, क्या करूं, बताइए क्या करा जाए। अल्फा प्लस बीटा v1 यस, अल्फा प्लस बीटा बीटा माइनस अल्फा v2। प्लस बीटा माइनस अल्फा बी, है ना। और ये फिर कुछ न्यू डेल्टा 1 v1 स्केलर, सम ऑफ टू स्केलर्स इज अगेन स्केलर, डिफरेंस ऑफ टू स्केलर्स is again scalar. So this implies that x belongs to span of v1 v2. So the subset of, so from 1 and 2 left hand side is equal to right hand side। ठीक है भाई, तो सी पार्ट की बात करते हैं। देखिए सी पार्ट आपका थोड़ा सा, सी में भी कुछ ऐसा वो नहीं है आपको आएगा दिया, बस हमें एक बार रिमूव करके सेट को दिखाना है कि स्किप करो, कि अगर मैं बी के रिमूव कर दूं, लेकिन वी के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वी के इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vk माइनस, है ना, ऐसा वी के लिया है, विच इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स, अपने प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। सी पार्ट देखते हैं, सी, तो हमें एक चीज गिवन है यहाँ, क्या गिवन है कि वी के बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ v1 v2 vk माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ध्यान रखना है कि vk को क्या मैं लिख सकता हूँ, अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा k माइनस 1 vk माइनस 1, है ना, क्योंकि इसका मुझे यूज करना है। इसे सपोज कर दूं मैं 1,
और अच्छा, अगर इसमें लेफ्ट साइड ले जाऊं तो मैं से ये भी तो लिख सकता हूँ, वी के माइनस अल्फा वन वी वन माइनस अल्फा टू वी टू एंड सो ऑन माइनस अल्फा के माइनस वन वी के माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन प्रूव करते हैं ना, इसका इस्तेमाल होगा प्रूफ देखिए इसका बहुत अच्छा। अब वही प्रोसीजर कि आई वांट टू शो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो एक x लेंगे, आई विल टेक वन x बिलोंगिंग टू दिस साइड, सपोज x बिलोंगिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, let x belongs to v1 v2 और vk माइनस वन, इसमें vk है आपका, इस पे x अगर बिलोंग्स करेगा तो हमें मालूम है बाय द डेफिनेशन बिल्कुल वही चल रहा है जैसे अभी ने प्रूफ किया। अगर x बिलोंग्स करेगा तो x कैन बी रिटन एज सम बीटा वन v1 बीटा टू v2 बीटा k माइनस वन vk माइनस वन प्लस बीटा k vk प्लस बीटा k प्लस वन k प्लस वन प्लस एंड सो ऑन बीटा एन वी एन। ओके, तो अब हमें जो शो करना है, हमें शो करना है कि ये x बिलोंग्स करेगा ऐसे सेट में जिसमें vk नहीं है, vk मिसिंग है ना, vk नहीं है, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ से इस टर्म को हटाना है, इस vk को रिमूव करना है। आई डोंट वांट vk नाउ, क्या करूं बताओ, इसे क्या लिख सकता हूँ, सोचिए, पीछे के टर्म्स तो मुझे चाहिए, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। VK की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ भाई, vk मुझे नहीं चाहिए अब, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले सेट में vk मिसिंग, तो vk की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वन से, ठीक है, तो vk का टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म्स आ जाएंगे, ऑब्वियस सी चीज है। तो आई कैन राइट अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू अल्फा के माइनस वन ई के माइनस, इसकी वैल्यू वीके की वैल्यू रख दी गई, बाकी टर्म्स के पास कुछ नहीं छूरा, ऐसे ही लिख दिया, उन टर्म्स में कुछ नहीं छूरा क्योंकि आई नीड रेस्ट ऑफ द टर्म्स। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब v1 के टर्म्स आपके पास यहाँ भी आ रहा है, यहाँ एक साथ देख लीजिए, तो इस टर्म का और इस टर्म का कोएफिशिएंट देखिए, v1 का क्या हो जाएगा, बीटा वन प्लस बीटा के अल्फा वन v1, है ना, प्लस ये टर्म देखिए बीटा टू और यहाँ बीटा टू, तो प्लस बीटा टू प्लस बीटा के अल्फा टू बी टू, ये टर्म्स कहाँ तक आएंगे, पूरे के माइनस वन टर्म्स तक आएंगे। ये टर्म क्या जाएगा नेक्स्ट, इसका लास्ट टर्म इस कॉम्बिनेशन का बीटा के माइनस वन प्लस बीटा के अल्फा के माइनस वन बी के माइनस, है ना, बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म जो थे वो एज इट इज, बीटा के प्लस वन बी के प्लस वन एंड सो ऑन बीटा एन। ठीक है, अब ये क्या देखिए, ये दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इट इज अगेन सम स्केलर, क्यों, Yes, गामा वन वी वन लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि स्केलर प्लस स्केलर सब रियल नंबर्स है, तो सब एक कॉम्बिनेशन भी एक रियल नंबर ही आएगा, कुछ गामा वन गामा टू वी टू। अब ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आएगा, गामा के माइनस वन वी के माइनस वन, और इसके बाद के प्लस वन टर्म आ गया सीधा, के टर्म नहीं है यहाँ पे, ये बीटा के रहा, ये तो बीटा के रहेगा, बीटा के प्लस वन बी के प्लस वन बीटा एन बी एन, तो है क्या है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही सारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to span of v1 v2 vk minus 1 vk plus 1 and
Bn। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन बनो क्लियर है। चलो यस सर। अब कन्वर्सली में अगेन let x belongs to the span set where vk is not there, vk is not there, तो vk plus 1 लिखो। अब हमने क्या लिया है, राइट हैंड साइड वाला जो सेट था, ये है प्रॉब्लम आपकी। अभी हमने लेफ्ट में लिया था, शो करा ये इसका सबसेट है। अब हमें एक्स लेके राइट हैंड साइड में वेयर vk is missing, तो सेम थिंग अगेन आई कैन राइट x एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, x को आई कैन राइट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन सम बीटा 1 या गामा 1 ले लो, गामा 1 v1 प्लस गामा 2 v2 एंड सो ऑन, गामा k minus 1 vk minus 1 प्लस गामा k plus 1 vk plus 1 एंड सो ऑन गामा n vn। अब मुझे यहाँ पर vk का टर्म चाहिए, क्या करूं बताओ। नाउ आई वांट vk टर्म, सेकंड इक्वेशन है 0 इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ये जो थी भाई, ये आपके पास जीरो था, है ना, तो इस टर्म को अगर मैं लिखूंगा तो जीरो, क्योंकि जीरो से कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, प्लस जीरो कर दिया, मान लो प्लस जीरो, अगले नेक्स्ट स्टेप में जीरो ऐड कर देते। जीरो ऐड कर ले वाला, यू आर एडिंग नथिंग, और जब जीरो आप ऐड करेंगे तो जीरो की वैल्यू हमने इसलिए निकाली थी क्योंकि आई वांट टू यूज इट। यहाँ पे जीरो है, लेकिन जीरो की वैल्यू क्या है, फ्रॉम टू दिस ई के माइनस, तो जीरो की वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पर, सपोज इसे मैं रेड कलर में लिख दे रहा हूँ, तो जीरो जो है आपका वो है वी के माइनस एल्फा 1 v1 माइनस एल्फा 2 v2, क्या था एक बार देख लो, एंड माइनस एल्फा के माइनस 1 v2। ये किसकी वैल्यू रखी है हमने, जो जीरो ऐड किया है, ठीक है, जीरो, रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज, उसमें हमने कुछ नहीं करना, तो वो तो हमें चाहिए। प्रूफ में अच्छी बात होती है, द गुड थिंग इन अ प्रूफ प्रॉब्लम, यू ऑलवेज हैज आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, तो आंसर से आपको आइडिया लग जाता है ना हमें क्या प्रूफ करना है। वी ऑलवेज हैव कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव, तो हम उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेके चलते हैं। So rest of the thing as it is. चलो अब क्या करें भाई बताओ, ये टर्म और ये टर्म देखिए जरा, गामा 1 माइनस अल्फा। सिमिलरली दिस एंड सो ऑन, गामा के माइनस 1 माइनस अल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1, और ये वी के का टर्म साथ में एक्स्ट्रा आएगा आपके पास, प्लस वी के एंड रेस्ट ऑफ द टर्म। अब इट इज अगेन सम स्केलर, है ना, डिफरेंस ऑफ टू स्केलर्स इज अगेन अ स्केलर, तो डायरेक्ट आई कैन से x is a linear combination of ये v1 है, सॉरी, x is a linear combination of v1 v2, यानी कि x belongs to v1 v2 vk, और यहाँ vk माइनस 1 भी आएगा, vk माइनस 1 vk vk प्लस 1, अच्छा 2 से नहीं है, इसे 2 मतलब कॉपी करो, दिस implies that your and so on, okay, so that means 1 and 2 implies what,
1 and 2 implies that your left hand side is equal to right hand side. Okay, तो ये एक आपकी प्रॉब्लम थी. So you understand now how to prove it. क्लियर है यहाँ तक? बताइए. Yes, sir. हाँ. So in this way you can prove all these spanning problems. और ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेसिकली स्पैन सेट की कि अगर हम कुछ इसमें स्केलर मल्टीप्लाई कर दें तो भी स्पैन सेट विल बी इक्वल. दो वेक्टर ले उनके डिफरेंस एडिशन कर दें तब स्टिल स्पैन सेट इज इक्वल. एंड द सी प्रॉपर्टी वाज वेरी इंपॉर्टेंट जिसका मुझे आगे यूज भी करना हुआ कुछ जगह कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ऐसा विच इज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स तो वी कैन रिमूव द होल वेक्टर. इनफैक्ट मोर देन सच वेक्टर. यहाँ पे एक वेक्टर लिया, ऐसे अगर आपके पास और भी वेक्टर्स होते उन सबको भी रिमूव कर देते हैं वीके प्लस 1 एंड सो ऑन, तब भी स्पैनिंग सेट ऑलमोस्ट में इक्वल रहता है. आइडिया आप समझ सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट में से अगर आप कुछ निकाल रहे हैं तो उसकी सेट के उस पर फर्क नहीं पड़ता काटने. अगर यही फाइनाइट सेट होते फाइनाइट सेट पे हम ये चीज नहीं प्रूव कर सकते है ना. ये स्पैन सेट है इनफाइनाइट. फाइनाइट सेट में आई कैन नॉट से कि इफ यू हैव टू एलिमेंट ए बी सी दिस विल बी इक्वल टू 5 टेकिंग है ना. ऐसा हम नहीं लिख सकते. फाइनाइट में इट इज नॉट ट्रू. लेकिन स्पैन सेट क्योंकि इनफाइनाइट होता है तो यहाँ पर ये चीजें. नेक्स्ट टॉपिक भी है more about 3.4 more about subspaces. सबस्पेसेस में कुछ और more about subspaces. यहाँ पे we will see कि if you have two subspaces U and W, suppose U and W they are the subspaces of the same vector space V, not subset, it is subspace. Keep in mind subspace की बात हो रही है. So what about U union W and what about U intersection W? क्या ये भी सबस्पेस होंगे या नहीं होंगे, है ना? ये हमें देखना है. अब U इंटरसेक्शन W की अगर हम बात करें तो U इंटरसेक्शन W क्या एम्प्टी होगा? अगर U भी V का सबस्पेस है W भी V का तो U इंटरसेक्शन W क्या कभी एम्प्टी हो सकता है? नल सेट अगर ये सबस्पेसेस है बताइए. no, sir. क्या आएगा कॉमन इसमें?